So I did an internship and then I got converted to full time. That was a Singapore based company and that got me like a base of $30,000. पहले फ्रीलांसिंग करा, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट से ही मेरे को एक ने रिकमेंड करा था कि यू कैन ट्राई दिस इंटर्नशिप. मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप पे काम करा. उसके बाद दे सेड मी कि वी विल एक्सटेंड योर इंटर्नशिप टू फुल टाइम, विल यू बी विलिंग. इनिशियली फ्रीलांसिंग से कितना पैसा कमाया था आपने एकदम स्टार्टिंग स्टेज में? I know if I have a US client or if I have an Indian client or if I have particularly a Singapore client, what will be the charge? क्या आपके कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जो आप पूछते हो अपने क्लाइंट से? There can be people who can do excellent work from like बहुत ज़्यादा वो अच्छा काम कर सकते हैं, तुमसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, but they are charging less. Don't overcommit also. And they were so impressed that they said कि like आगे से अगर मेरे को इस पर और बिल्ड ऑन करना होगा ना, I will come to you. कि for remote jobs what you do is एडवाइस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में है एंड दे वांट टू स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग. okay, so let's break it down. वेलकम बैक टू संस्कार शो. आज के एपिसोड में आई एम टॉकिंग टू क्षितिज हु इज मेकिंग 25 lakhs a year from a remote job which he got through freelancing. In this video he told me how you can go from being a beginner to charging up to 50,000 rupees for a single UI UX freelance project. अगर आपको सिर्फ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमानी है या फिर आप फ्रीलांसिंग में फुल टाइम जाना चाहते हो, in both cases this video will actually help you because in this video we talked how you can find your first client with zero experience, how you can find foreign clients, and more importantly how you can get a remote job through freelancing experience. Having said that, it's not easy, so I suggest you take a pen and paper, note down your learnings and implement those learnings because आपको फ़ायदा तभी होने वाला है. So without wasting any time, I am Sanskar and you're watching The Sanskar Show. भाई with freelancing, have you tried full time as well? And उसमें क्या pay range रहता है मतलब? See, if I talk about full-time jobs, take an UX design, so they are very like I will say variable. Take first of all, like my full-time, like I did an internship. Take because I said like मेरे को like learning experience चाहिए था. So I did an internship and then I got converted to full-time. That was a Singapore-based company and that got me like a base of $30,000 a year. ठीक है. So like if I talk about that. सो बाहर के जो कंपनीज है, ग्लोबल कंपनीज है, दे कैन पे यू मोर. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट इंडियन कंपनीज, दे विल पे यू, आई विल से गुड कंपनीज विल पे यू मोर. ठीक है. बट स्टार्टअप्स पे नहीं करेंगे इतना. ठीक है. बट अगर बाहर की ग्लोबल कंपनीज है तो स्टार्टअप्स भी अच्छा पे करते हैं. एंड द बेस्ट पॉइंट इज कि तुम रिमोट वर्क कर सकते हो, यू डोंट हैव टू बी प्रेजेंट फिजिकली. सो मेरे को जो हेल्प करा था, व्हाट एक्चुअली हेल्प वाज कि लाइक आई गॉट इनटू फ्री लाइक पहले फ्रीलांसिंग करा. फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट से ही मेरे को एक ने रिकमेंड करा था कि यू कैन ट्राई दिस इंटर्नशिप. ठीक है. सो मेरे को रिकमेंड करा, आई गॉट इनटू एन इंटर्नशिप. ठीक है. मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप पे काम करा. ठीक है. एंड देन लाइक टू बी ऑनेस्ट व्हेन अदर पीपल वर ट्राइंग फॉर लाइक प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, आई वॉज काइंड ऑफ वरीड कि मे बी आई शुड गो इनटू फ्रीलांसिंग. वो एक डिलेमा था. बट लाइक उसके बाद दे सेड मी कि वी विल एक्सटेंड योर internship to full time, will you be willing? ठीक है. and I was like okay, that is very good. so उसके बाद मैंने market analysis करा. ठीक है. what I can actually charge from them. ठीक है. what I will like what can the CT that I can ask for. ठीक है. so initially what they told me was कि like you tell us like what are your expectations. और तुम उनके साथ वो नहीं कर सकते हो like majorly जो मेरे साथ ऐसा experience हुआ है कि whenever you tell them कि I want like you tell me your budget or you can tell me that is a big company and that is a like a startup, so majorly ऐसा नहीं होता. हाँ, there are certain cases where you can actually get them to like say the first like amount, but like when I got into market research, there were people who were actually working as a fresher into 3-4 lakhs as well, 8-10 lakhs as well, and they're earning like if I talk about INR, they're like 15-16 lakhs as well. ठीक है. So now depends on the work you are doing, depends on the knowledge you have. ठीक है. Let's say if there is an initial person who is only doing UI kind of things, so जिनको Figma आता है, बस Figma ही basic आता है. ठीक है. they can get up to 3-4 lakh rupees. ठीक है. This is a very like dynamic, so I'm just saying what I feel. ठीक है. There can be more analysis that you can do that can be more accurate maybe. So if someone knows maybe
फिग्मा से ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है, मेरे को फिग्मा आता है, आई नो हाउ टू बिल्ड UI किट्स, आई नो हाउ टू मेक डिज़ाइन सिस्टम्स, ठीक है, they will pay you more, ठीक है, 10-15 lakhs or maybe more as well, ठीक है, depends on the market, like the company you are applying for, ठीक है. So उसके बाद like but if you know everything, ठीक है, like not everything, I will say everything तो मतलब वही वाली चीज़ होती है, but most of the skills that you require for designing process, ठीक है, and if you find the right company they can pay you a lot, ठीक है. So my company, I worked there as an intern, so they knew that I can work on things as well, ठीक है. I learned from there as only, ठीक है. मैंने जब स्टार्ट करा था तो मेरे को फिग्मा ही आता था, रिसर्च इतना ज़्यादा नहीं आता था, ठीक है. बट इवेंचुअली जब तक मैं फुल टाइम वाले पे आया, मेरे को रिसर्च भी आता था, मेरे को आई न्यू द एंटायर डिज़ाइन प्रोसेस बिकॉज आई वर्कड ऑन दैट, ठीक है. तो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ एंड देन दे एक्सटेंडेड मी एन फुल टाइम ऑफर, तो एक्सटेंडेड मी एंड दे गिव मी दैट पर्टिकुलरली कि आप कितना अमाउंट वो करना चाहते हो, ठीक है, कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी, ठीक है. सो फर्स्ट आई टुक अपॉन की ठीक है, मैंने मार्केट, इंडियन मार्केट देख लिया, इतना होता है, ठीक है. फिर मैंने ना आई न्यू अ पर्सन हु वाज वर्किंग हु इज़ इन UK, ठीक है, ही वाज अ डिज़ाइन कंसल्टेंट, ठीक है. So I bluntly asked him, sir, I am not able to like understand what I should ask for exactly because this is my first time. I am a fresher, so what I should exactly quote, ठीक है, to the people. So he said कि this is like in UK he said कि for remote jobs what you do is $2,000 to $4,000, like $2,000 to $4,000 they pay for like junior design roles, ठीक है, and $4,000 $6,000 or maybe more they pay for like mid designers, and 6,000 above they pay for like senior designers, and then it can pay increase, ठीक है. He told me that figure, ठीक है. So I was like okay, but I am in India, so maybe they can consider that, and one of my co-founder was an Indian as well, so then I know कि उनको पता होगा थोड़ा सा इंडिया में कैसे मार्केट रहती है, तो इफ़ आई ट्राई टू नेगोशिएट तो वो हार्ड नेगोशिएट हो सकता है, ठीक है, तो मतलब वो प्रॉब्लम हो सकती है. But then like when we were doing the finalization, they asked me like what are your expectations. I took both things and I quoted ki like I want $3,000 per month, and like I think this is the best thing. And then 3,000 also was being कि मेरा एक माइंडसेट था, इंडियन माइंडसेट था कि मे बी $1,000 शायद से कम कर देंगे, $1,500 कम कर देंगे, $1,500-$1,600 से सेट हो ही जाएगा, ठीक है. But they said कि okay Kshitij, but you know like right now the work is not, obviously they will say those things and you have to negotiate as well. So we talked about that and then we settled on like a particular amount, $2,500 per month, and that was it. Like they were like okay, and at that time I was ready to take a job for 16-18 lakh rupees per month easily, because मार्केट ट्रेंड बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, पिछले 2 साल से नहीं चल रहा अच्छा, ठीक है. एंड कोविड का बाद का टाइम है तो मतलब बिल्कुल ही वैसा हो गया था. प्लस आई वॉज लाइक कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट एक्चुअली, एक बार स्टार्ट मिल जाए ना, देन इन टेक इंडस्ट्री यू कैन ग्रो एज मच एज यू वॉन्ट, यू कैन ग्रो, ठीक है. सो वो वाली चीज़ थी. बट इनिशियली जब मेरे को मिला तो आई वॉज लाइक ऑसम, दैट इज़ अ वेरी गुड अमाउंट दैट टू बी स्टार्टिंग विद, ठीक है. एंड पूरा बेस था, मतलब पूरा इन हैंड था, लाइक दे जस्ट अकाउंट में आएगा USD एंड ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन कॉस्ट कटेगी, तो वो वाली चीज़ होगी. बट इवेंचुअली दैट गॉट मी, ठीक है, कि ग्लोबल क्लाइंट्स अच्छा पे कर सकते हैं, ठीक है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट करंट सिनेरियो एज वेल, ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट पार्ट टाइम, अगर मेरे को कोई ग्लोबल क्लाइंट मिलता है ऑब्वियसली आई विल चार्ज अकॉर्डिंग टू दैट. बट अगर इफ़ आई टॉक अबाउट इंडियन क्लाइंट्स, ठीक है, Indian part-time companies or like startups, which I actually kind of want to work with them, ठीक है, because my company which I worked with like is a Web3 company, ठीक है. Web3 वो company is a very unstable company. I believe that personally because I have seen that, ठीक है. You never know what will happen in Web3, ठीक है. That is a very dynamic place. So like but in Web2 space or like in other spaces, when I think about maybe applying, I send them कि my current salary is this, ठीक है. They were like sorry, there's not we can pay, and that is fine because everyone has their own like set guidelines and you can find people who will work for less, ठीक है. But I knew कि ठीक है, if I apply to the right positions in India also you can get a lot more, ठीक है. बड़ी कंपनी से तो मिल ही जाएगा, ठीक है. Google and like Fang and other countries you will find a good packages there. But in startups also they are paying you hefty, ठीक है. But of course in startups then they want you to like take the ownership of design,
ठीक है. You should have a like good design background. You should have a maybe they want a like particular products that you worked on. And one more thing I've seen is they want you have to experience in that particular product. That let's say if they're working in a finance industry, then they will want you to have some experience in finance projects. ठीक है. तो ये वाली चीज़ फ्रीलांस से हेल्प करती है कि तुम डाइवर्स लाइक अगर तुम इंडस्ट्रीज में काम कर चुके हो तो तुम एटलीस्ट शो यू कैन शो देम हाँ मैंने इस पे काम करा था दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दैट एंड आई कैन यू कैन व्हेन वी आर टॉकिंग विद दैट पर्सन यू कैन ऑब्वियसली टेल देम कि हाँ दिस इज़ व्हाट वी कैन डू दिस इज़ व्हाट आई हैव वर्कड ऑन दिस इज़ व्हाट वी कैन इम्प्रूव ऑन सो ऐसे कम्युनिकेशन वो वाली चीज़ बढ़िया हो सकती है ठीक है तो वही होता है कि फुल टाइम देयर इज़ अ लाइक वेरी बिग रेंज from what you can start with, what you can get into, ठीक है. Now it depends on what kind of companies you are targeting, ठीक है. Is it a startup? Is it a like a proper company like a very big scale company, ठीक है. Is it an MNC or like is it a company that hires in bulk or obviously geographical location also matters, ठीक है. A US company will pay you more, UK company will pay you more, other like there are companies who will pay you less also, so that is very very dynamic. And Indian companies also, there are companies that will pay you less and companies that will pay you more in startups I'm talking about. Okay. So in that case you will have to like find, you have to apply. Okay. मतलब application if I talk about right now also, like if I feel about applying out, ठीक है. So you have to apply to a lot of companies, ठीक है. To find that exact company that you want, ठीक है. Not हो सकता है कि starting में you may not find the exact company, right company. So later on you can switch and you can find that exact company you want. Starting तुम low से कर सकते हो, ठीक है. And I never let's see anything is not like ये बहुत कम है. Start किससे भी करो. Start करो experience. एक बार experience मिलना start हो गया ना, उसके बाद you will grow eventually. So that is what I mean. करेक्ट. तो INR में कितना हो गया 30,000 USD? एनुअल लाइक मेरे जो कट के आता था सो इट वाज अराउंड 25 के अराउंड 400 के अराउंड था ठीक है. एंड एनुअली एंड ऊपर से दे गिव मी लाइक थिंग्स टू सेट अप एंड लाइक टू सेट अप माय रिमोट वर्क. सो दैट वाज लाइक कंप्लीट सिटीज इन इंडिया जस्ट फॉर द थिंग्स ठीक है. सो ये वो हो गया. एंड one more thing I just want to like talk about is hackathons. ठीक है. Hackathons can pay you well, very well. ठीक है. मतलब ये वाली चीज़ होती है like I got into 2 hackathons. ठीक है. I went to hackathons, SIH and Tethesia. ठीक है. So SIH I won. ठीक है. And Tethesia also like we won. And Tethesia prize was $15,000. ठीक है. It was a 1 month like hackathon, and they paid me that like it paid winner. Obviously, there can be circumstances where there's no winner and all, but when I become the winner, I was like, fuck, that is a lot of money in my college time, and I came to know कि उससे opportunities ही मिलती है. ठीक है. Hackathon से बहुत opportunities तुम्हें मिल सकती है. ठीक है. Full time intern बहुत मिल सकती है तुम्हें. तो वो एक space है कि वहाँ पर तुम also you can try. ठीक है. वहाँ पे सब चीज़ें मिलेगी. देखो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने से क्या होगा. हैकाथॉन से पार्टिसिपेट करने तुम एक प्रोजेक्ट के साथ रेडी हो गए. ठीक है. तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ेगा क्योंकि देयर इज अ सर्टेन टाइम रिस्ट्रिक्शन. ठीक है. तुम वो प्रोजेक्ट भी बनाओगे, तुम उस पर काम भी करोगे. ठीक है. यू विल गेट द नॉलेज ऑल्सो. मे बी अगर उसके अंदर कुछ और तुम कोलैबोरेट भी करोगे अदर दूसरे लोगों के साथ जो उस दूसरी फील्ड्स में काम कर रहे हैं. डेवलपर्स हो गए या कॉन्टेंट वाले हो गए. सो यू आर वर्किंग ऑन विद देम एज वेल. और साथ में इफ़ यू विन दैट इज़ अ वेरी लोअर वाली चीज़ है कि मतलब विनिंग इज नॉट, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग फॉर विनिंग, बट इफ़ यू विन दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी एज वेल. So like if you go into hackathons, that is a very beneficial, that is the most beneficial I will say thing that you can do while in your college times. कॉलेज टाइम की बात भी कर सकते हो. बट हाँ, कॉलेज टाइम में तो आई थिंक प्रोजेक्ट बनाना और हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर लो. ठीक है. तुम्हें सब कुछ मिलेगा. इंटर्न भी शायद से वो देते हैं अगर तुम्हारा अच्छा तुम्हारा प्रोजेक्ट लगा. तो इफ़ यू हैव वर्कड एक्चुअली हार्ड ऑन दैट, तुम्हें इंटर्नशिप या कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट उनसे, या नहीं तो रिकॉग्निशन मिल जाएगी कि यू हैव वर्कड ऑन. और अगर लास्ट में अगर आई विल से नथिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तुम एक प्रोजेक्ट होगा जो तुम दिखा सकते हो, वो तो तुम करोगे वैसे भी. तो हैकाथॉन्स आर वेरी गुड थिंग्स यू कैन स्टार्ट विद एज वेल एज अ like engineer or like any person in college time. इनिशियली फ्रीलांसिंग से कितना पैसा कमाया था आपने एकदम स्टार्टिंग स्टेज में? Generally like I got my first I guess
freelance project in second year, like initially second year में मिला था मेरे को, or like in starting of second year, and that was around 1200-1500 project. They asked me for a particular field, like ऐसे मेरे को एक वेबसाइट बनानी थी, and then I have to work on that, and वो मेरे को इतना पे कर रहे थे. And starting में you don't know कि how much they will pay you exactly, so you agree on anything. Like if they actually want कि free में काम कर दो, मैं उसमें भी कर देता, because I knew like कि आगे जाके अगर मेरे को दिखाना होगा तो this will be a very good product that I can show to people or like my clients. Next. तो आपने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग एंड अभी हैव ग्रेजुएटेड, अभी तक आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ठीक है. तो आपने ऐसा क्या सीखा है इन सालों में कि जो नॉर्मल फ्रीलांसर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो भूल जाते हैं इन चीज़ों को, दे मिस दीज थिंग्स, उनको आप क्या बताना चाहोगे? See, while do freelancing, like you don't have, first of all, there are two parts. There are learning part and then there is how to communicate with the client. ठीक है, you have to build on that, both things. So learning part में क्या होता है? When you initially get into UX design, for me it was कि I focused more on the UI part. कि प्रोडक्ट अच्छा दिखना चाहिए, दैट वॉज द मेजर सीन दैट लाइक और मेजर पॉइंट ऑफ फोकस दैट आई शुड बी फोकसिंग ऑन. बट आफ्टर दैट, ठीक है, उसके जैसे जैसे मैंने लर्न करा, आई गॉट टू नो कि देयर इज अ रीजन वाई आई एम डूइंग दिस और वाई आई शुड डू अ पर्टिकुलर, आई शुड मेक अ पर्टिकुलर डिसीजन. तो उसके बाद यू शुड लर्न कि लाइक धीरे धीरे करके लर्निंग आती है कि ठीक है, आई शुड नो अबाउट वॉट एग्जैक्टली टू यूज़, what like tools I can use, what are the skills, how to actually make a product. ठीक है, there is a whole design process involved in making a product or making any project. अब वो चीज़ learning part में आती है. And second is communicating with your client. ठीक है, initially what happens is you are not exactly sure. Let's say a client came to me and he asked, let's make a like make me a 2 or 3 page design, website design, and I will pay you this much. Or they will ask me what you will charge and I will quote something. ठीक है, but exactly you don't know how many pages or what are their exact requirements. ठीक है, after some time, like when I got into, like I got more clients, I talked and I communicated with them, then I came to know कि there is a particular I can say a process, not a process but a way of communicating with your client. ठीक है, before even onboarding them, you have to actually talk about the requirements, exact requirements what they want. आपने बहुत बारी बोला कि यू नीड टू नो व्हाट टू आस्क द क्लाइंट, तो आपने क्या सीखा है? ऐसे क्या आपके कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जो आप पूछते हो अपने क्लाइंट से? Okay, so if I talk about what to ask from a client, ठीक है, depends on particular, let's take an example. ठीक है, so someone comes, ठीक है, and they are saying कि they have an idea. अब now in design actually there can be particularly different type of freelancing projects. There can be like I want a product or a project to build from scratch. ठीक है, that is the first type. The second type can be that I want a redesign of a particular thing. That can be a second type. Third thing is I want a feature to be included in that. I have a product, I want a feature to be included in that and you make a design. Let's take 3 for now. There can be more. ठीक है, फर्स्ट में क्या हुआ, अब तुम्हें स्क्रैच से चाहिए सब कुछ. ठीक है, तो स्क्रैच से चाहिए, so you will ask from the client starting में कि let's say okay, this is the features you want, these are the things that you want in that particular product, these are the features, this is how you want to plan the features, you plan out the user journey, you if there is involved, like let's say if they want me to do the research as well, then I will do the user survey कि मार्केट में एक्चुअली ऐसे प्रोडक्ट्स है नहीं है. ठीक है, then I will make a user flow, I'll work on the wireframes, I will work on the user journeys, I will make personas, बहुत सारे होते हैं. अब that is a whole design process that will be involved in from scratch. अब मैं उसका डिज़ाइन सिस्टम बनाऊंगा. ठीक है, इफ़ द क्लाइंट रिक्वायर्स इट. ठीक है, अब क्लाइंट को भी ऐसा हो सकता है कि दे वांट अ क्विक प्रोडक्ट. ठीक है, दे वांट एक्चुअली देयर 2 टाइप्स ऑफ क्लाइंट. फर्स्ट इज कि आई वांट समथिंग, आई वांट परफेक्ट वेज, आई वांट परफेक्ट थिंग्स फर्स्ट एंड देन आई विल रिलीज दैट प्रोडक्ट. Nothing can be perfect, but I want good enough like product built and then I will release it. ठीक है, second is I want something from scratch, like MVP बना दो, launch करते हैं and then we will see कि क्या क्या improvements करनी है, user feedback लेकर. ठीक है, both works, both have their different pros and cons, but actually that is from when you work from scratch. ठीक है, second आता है when you have to redesign something. ठीक है, redesign में क्या होगा, you have to find out exactly कि user को अभी जो present है, जो प्रेजेंट डिज़ाइन है वो क्यों पसंद नहीं है. इज़ इट विजुअली नॉट अपीलिंग, इज़ इट नॉट वर्किंग फॉर द यूजर्स. ठीक है, तो ये चीज़ हमें एग्जैक्टली देखनी पड़ेगी कि अभी वो उसका यूएक्स ख़राब है. ठीक है, यूज़र जर्नीज ख़राब है उसकी, या उसका यूआई ख़राब है, या बोथ ख़राब है. ठीक है,
एंड देन यू टॉक अबाउट द लाइक टॉक फ्रॉम द क्लाइंट कि एग्जैक्टली उन्हें चाहिए क्या इस पॉइंट पे, कि उन्हें यूआई बेटर करना है, उन्हें यूएक्स बेटर करना है, दोनों बेटर करना है, या उन्हें कुछ और चाहिए उस पर्टिकुलर रीडिज़ाइन में, और आर दे समथिंग लाइक लेट्स से द थर्ड पॉइंट वॉज कि इफ दे वांट अ न्यू फीचर इंक्लूडेड इन दैट, ठीक है. तो न्यू फीचर में क्या हो जाएगा कि यू हैव अ बेस लाइन, यू हैव अ बेस सेटअप ओनली, ठीक है. तुम्हें कलर्स वो यूज़ करने पड़ेंगे, तुम्हें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी डिज़ाइन में, ठीक है. जो पहले डिज़ाइन एग्जिस्ट करता है तुम्हें उसके ऊपर बिल्ड अपॉन करना है, ठीक है. तो वो एक थर्ड टाइप का प्रोजेक्ट हो जाता है. तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू आस्क कि कौन सा प्रोजेक्ट किस सेट पे है, ठीक है. और एक और चीज़ होती है कि ना फ्रीलांसिंग में मेजर लेवल से रिसर्च इज़ नॉट इन्वॉल्व दैट मच. There are unique cases where they will want you to exactly go into a detail research about the product and then start on designing. But many of the freelancers, what they want was कि like client freelancing clients जो होते हैं, what they want is कि I have this product, you just work on that, make it visually appealing, UX अच्छा होना चाहिए थोड़ा सा, and then we will see. So तुम्हें पता होना चाहिए कि like process क्या follow करना है, ठीक है. जो आइडियल प्रोसेस होता है ना, हार्डली दैट इज फॉलोड. आई विल से इन इंडस्ट्री ऑल्सो हार्डली दैट इज फॉलोड. तो यू शुड नो कि कितना टाइम बजट, कितना टाइम है, ठीक है, कितना टाइम फ्रेम है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट. तो तुम एसेंशियल थिंग्स पे वर्क करोगे. ऐसा नहीं कि सब कुछ परफेक्ट बनाने के लिए यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कि मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा. यू हैव टू थिंक कि ठीक है, दिस इज द टाइम फ्रेम दैट आई हैव टू वर्क ऑन, दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव टू डिलीवर, आई हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली कि ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा. And then individual steps also, I will talk with the client that I have done this, is it good, is it not, are we thinking of something else. तो इंडिविजुअल पॉइंट्स भी तुम्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्लाइंट के साथ कि लेट्स से तुमने वायर फ्रेम्स बना लिए, यूजर फ्लो बना लिया, यू आर टॉकिंग विद द क्लाइंट, इज इट गुड, इज इट नॉट, इफ देयर इज समथिंग एल्स इन योर माइंड दैट यू आर थिंकिंग टू इंक्लूड इन, सो वी कैन चेंज ऑन दैट. तो ऐसे करके देन यू स्टार्ट लाइक यू एक्चुअली नो कि क्या पूछना है क्लाइंट से. So this was कि प्रोडक्ट कैसे, लाइक प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे यू हैव टू गेट द रिक्वायरमेंट्स. द सेकेंड इज सेटिंग अप द, आई विल से, कोटिंग द अमाउंट दैट यू विल चार्ज फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है. सो दैट इज पर्सन टू पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड मार्केट एनालिसिस तुम कर सकते हो कि कितना चार्ज करते हैं. दे आर पर आवर रेट्स, ओके. एंड देर आर लाइक इंडिविजुअल रेट्स कि मैं इतना प्रोजेक्ट का इतना लूँगा, ठीक है, मिनिमम रेट इतना है. देन पर स्क्रीन्स भी होते हैं कि लाइक मोबाइल स्क्रीन डिफरेंट, वेब स्क्रीन डिफरेंट. सो एवरी वन हैज़ देयर ओन लाइक प्रेफरेंसेज हाउ दे वॉन्ट टू चार्ज फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है. दैट यू हैव टू डू अ लाइक रिसर्च पर्टिकुलरली ऑन द मार्केट, ठीक है. एंड व्हेन यू थिंक कि इतना, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आई थिंक 5-10,000 इज इनफ फॉर मी, ठीक है, दैट इज़ अ गुड स्टार्ट, ठीक है. बट नाउ आई थिंक इफ आई एम टेकिंग अ प्रोजेक्ट, एटलीस्ट 50K प्रोजेक्ट आई विल टेक, ओके, वेदर इट्स अ बेस प्रोजेक्ट ओनली, ठीक है. तो ये धीरे धीरे करके तुम्हारा सेट होता है. लाइक लेट्स से इफ देयर इज यूएस क्लाइंट, ओके, you know कि they can pay you up to $1,000 or more also. So you know कि how to, like, who exactly your client is, ठीक है. Let's say Indian clients honestly थोड़े कम देते हैं, ठीक है. Global clients ज़्यादा देते हैं, ठीक है. There can be unique cases, there can be different cases. Personally speaking, this is what I have seen. So you are knowing कि तुम्हारा client what they can actually pay and what they want. अगर ये दोनों चीज़ तुम सेट कर सकते हो ना अपने लिए, तो तुम ग्रो करोगे. एंड एक्सपीरियंस से तुम्हें पता चलता रहेगा कि एग्जैक्टली तुम कितना चार्ज करना चाहते हो और एग्जैक्टली क्लाइंट भी क्या चाहता है. तो तुम क्लाइंट टू क्लाइंट फिर डिफर कर सकते हो कि दिस इज व्हाट आई विल चार्ज, दिस इज व्हाट आई विल गिव यू, दिस इज व्हाट आई विल चार्ज, दिस इज व्हाट आई विल गिव यू. To know how much money she has made with one single client, stay tuned for that. भाई, why do you feel people think freelancing is risky? लोग क्यों डरते हैं इससे? इनिशियली आई थिंक एक बैरियर रहता है कि विल आई गेट क्लाइंट्स और नॉट, ठीक है. मेरे को भी था, ठीक है. लेट्स से यू गेट 1 client, यू गेट 2 clients, बट देन लाइक इफ आई टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज इनटू ओनली इनटू फ्रीलांसिंग, then they have to worry about will I get clients or not. Now this worry can be like later on this worry is decreased. Either you have many clients or you have good clients who actually pay you well. Right. ठीक है, you have few clients but they actually pay you well. What is better? Both have their own like I say like pros and cons. I usually prefer to have few clients with who actually pay me well. ठीक है, because if I talk about the other case where I have many clients, तो मेरे को सबका देखना पड़ेगा कि लाइक फिर मेरे को अपना टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा कि लाइक दे आर 10 clients, आई हैव टू वर्क फ्रॉम देम, ठीक है. फिर मेरे को और क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे,
ठीक है, कि लाइक वो आते रहे बट लेट्स से आई हैव 2 or 3 good clients who pay me well, who actually want to build on a good product, ठीक है, तो आई विल stay longer with them first of all, and actually if I am involved with them तो वो फ्यूचर का ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है. If I have worked with a product, ठीक है, freelance, maybe it's a like a contract based or it's a freelance based, ठीक है, and later on what that person says is कि like this is what we worked on, now it has boomed, will you be like coming in a full time role, ठीक है, I have seen that for me, ठीक है, so this also helps actually, ठीक है. अब now in other scenarios like if you have many clients then तुम्हारा एक रिस्क कम हो जाता है कि like let's have 10 clients, I have coming clients more and more, ठीक है, तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे पास क्लाइंट्स आते रहेंगे, आई विल वर्क ऑन दैट, बट आई हैव टू मैनेज ऑल द क्लाइंट्स एज वेल, ठीक है. तो सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. आई यूजुअली प्रेफर हैविंग फ्यू क्लाइंट्स हु पे मी वेल एंड आई कैन वर्क विद देम इन अ लॉन्गर रन, तो वो चीज़ बेटर होती है. तो फ्रॉम मेकिंग 1200 रुपीज टू द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी यू हैव मेड विद अ सिंगल क्लाइंट, वो कितना पैसा था एंड उसमें कितना टाइम लगा उस जर्नी में फर्स्ट से उस अमाउंट ऑफ मनी तक आने में? So if I talk about the most I've charged for like there are different pays pays, like let's say they are the first type of I have is like I work for a particular hours in a week for them and they me monthly, that is the first. The second is ki there's a product or there's a project that they are giving me, I complete that and then we are both separated. So if I talk about that, because mostly that only happens कि मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, मैं उस पर फ्रीलांस वर्क करूँगा एंड देन दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, ठीक है. सो दैट वाज इफ आई टॉक अबाउट $1,000, ठीक है, इट वाज अ सिंगापुर क्लाइंट. रुपीज़ में कितना हो गया? 80,000 समथिंग आई गेस, इतना ही चल रहा है अभी, ठीक है. सो दैट वॉज लाइक माई मतलब इतना मैं बेस इतना मेरा रहता है कि इतने के अराउंड आई गेट क्लाइंट्स, ठीक है. सो ये वाला जो क्लाइंट थे व्हाट दे आस्क्ड मी वाज कि लाइक यू हैव टू बिल्ड अ लैंडिंग पेज, ठीक है, एंड यू हैव टू बिल्ड ऑन अ प्रोडक्ट एज वेल, ठीक है, बट दैट वाज अ 15-day जॉब, 15 days जॉब थी, ठीक है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द जर्नी कि कितना साल और कितने लाइक वो लगे, सो इट वाज अराउंड आई विल से सेकेंड ईयर मैंने स्टार्ट करा था, ठीक है, 4th year के एंड में मतलब मेरे को मिले थे 2 years यू कैन से, ठीक है. एंड दिस जर्नी आई विल से लाइक आई हैव इन्वॉल्व इन अ फुल टाइम जॉब एज वेल, ठीक है, उसके साथ साथ मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, ठीक है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्टेपिंग लाइक एक होता है ना ग्राफ होता है, वॉज इट लाइक अ राइजिंग ग्राफ और लाइक दिस ग्राफ, तो इफ आई टॉक अबाउट दैट तो इवेंचुअली इट इंक्रीज, ठीक है, फ्रॉम 1,000 to like from 1,200 rupees I knew how to charge like 10,000, 15,000, 20,000, 40,000. And if I talk about current projects as well, ठीक है, I can ask for more. I have clients who will pay me more, ठीक है, but they have a longer term, I will say more requirements, or they want me to give more hours, ठीक है. So you have to balance out somewhere that you are happy with your clients, and if they are happy with you, so that works both ways. So you have to find those particular clients, I will say. मेरे को वो मिल गए अभी, and I'm finding more as well. Like I have not into like involved in full time or like freelancing, कि like मैं पूरा ही freelance कर रहा हूँ. I'm working contract based, I'm working freelancing based. So like I'm also somewhere in the middle of it. But in future, if I talk about if I'm planning, so I will fully go into freelancing or maybe start something, my design studio, where I can get freelance projects, big freelance projects, and I can work on that. Honestly speaking, I have never tried freelancing websites. ठीक है, I have got all my clients through connections. ठीक है, either connections or they have recommended me to someone else. So सबका वो better मेरे को I think that is better because if I can like if I met that person, they are giving me project, I have involved with them, and then they are recommending me to someone. That I think is a natural growth, that is an organic growth to your clients. ठीक है, और obviously the second is also good one, but that is more saturated. There are hundreds of people who will be willing to pay or like who will be willing to do that work in much less. So that is helpful. The second, like the first scenario has helped me to like get to this point, I believe. To know about how Kshitij's biggest mistake gave him his biggest learning, keep watching. You mentioned कि finding foreign clients, they pay well, ठीक है, as opposed to Indian clients.
तो व्हाट्स योर एडवाइस फॉर फाइंडिंग फॉरेन क्लाइंट्स? हैविंग लाइक मेरे लिए जो बेनिफिट रहा वो था कि मैं एक टेक्निकल कम्युनिटी में था, ठीक है. सो आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट, ठीक है. सो मेरे अराउंड जितने भी ज़्यादा लोग थे ना वो डेवलपर्स थे, ठीक है. तो दे वॉज दिस पर्सन, ठीक है. वॉट दे वॉन्ट इज वॉट कि मेरे को दिस आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई एम सीकिंग फॉर पीपल टू वर्क ऑन दैट. नाउ आई वॉज अ सिंगल डिज़ाइनर who was there in that particular like meeting, I will say, ठीक है. And he said, bro, you're hired, like show me your work, or like we talked about that, and then he hired for that freelancing job. So this helped me कि like I was not in a saturated place where other designers were there, ठीक है. I was good in communicating. And if I talk about communities, ठीक है, that is a major, I think, space that helped me to get freelancing clients, ठीक है, from forum, ठीक है. It can be like technical communities, it can be other communities, ठीक है. So technical communities, if I talk about, I was like very involved in these like communities. NG India was my first meetup, like the conference that I attended. Then I got like to meet various other people who are working remote. See, remote jobs, people are working like in India, if I talk about, there are people who are working in extensively, like they're working on large projects, they're working like on foreign clients, they're working freelancing, they're working on different products, ठीक है. So you get to know when you communicate with other people as well, ठीक है. So let's say I got into a like community, ठीक है. I talk from 10 people, 15 people, ठीक है. They are doing good in their fields particularly. Then I know कि okay, these are the things that actually I can do, ठीक है. I learn from that. It also builds on communication skills, right? And एक बार connections बनते हैं ना, I will say, तो वो बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है. लेट्स से आई हैव लाइक अ गुड नंबर ऑफ कनेक्शंस, ठीक है. लेट्स से इफ दे आर मेकिंग अ प्रोडक्ट और देयर फ्रेंड इज मेकिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है. सो दे विल आस्क, ओके Kshitij, आई थिंक यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड, विल यू बी like willing to work on our product or like project? I have my friend working on something new, or I am working on something new. So they will reach out to you, ठीक है. If you are good, obviously you have to like be good in communication skills, and you have to be good in your work as well. So that helped me a lot, ठीक है. And I got into like different clients from there only. So you have to find your connections, I think. If there are good connections, if I talk about communities, if you find good connections there, you can get freelancing from there as well, or job opportunities also you can get from there as well. Bro, behind the scenes we were talking about the client experience. तो उसकी क्या importance होती है freelancing? See, client experience is important because let's say if I have done a good job and if I communicate well with the client, ठीक है, later on what that client will do is they will give me either more projects or they will recommend me something. At least that is a probability, that is a chance that will happen, ठीक है. If someone is looking, or if they find someone is looking for a particular UX designer, they will, I should be the first person that come in their mind कि भाई इसको रिकमेंड कर सकता हूँ मैं, ये बढ़िया काम करता है, ठीक है. तो ये वाला जो एक्सपीरियंस होता है, इफ़ यू कैन गिव दैट एक्सपीरियंस टू द क्लाइंट, ठीक है, इट कैन बी थ्रू लाइक कि how you talk to the client, ठीक है, how you deliver them their product or the things that they want, ठीक है. And if you said that these particular things, if you give them what they want, if you give them like better experience, client experience, like freelancing experience, so वो वाला जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ आगे जाके तुम्हें हेल्प कर सकती है. So like for just giving an example, so I worked with a client, ठीक है. So like he wanted a website. I worked on the website, and then after a few months he said कि I want an app as well, ठीक है. So I really liked your work, or like I'm planning on something else, so will you be willing to work on that, ठीक है. So वो वाला जो होता है ना कि you have to get retention from the clients, ठीक है, कि अगर आगे वो कुछ सोचे भी ना उस पर मूव फॉरवर्ड करने के लिए या कुछ उस पर काम करने के लिए, कुछ और काम करने के लिए, सो यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन कि उनके दिमाग में आए कि ये बंदे ने बढ़िया काम करा था, मेरे को बहुत मज़ा आया था इसके साथ काम करके, इसने मेरे को बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया था, डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया था. तो आई शुड बी थिंकिंग कि आगे जाकर मैं इसके साथ ही काम करूँगा, अगर मेरे को कुछ और काम आता है तो, या अगर कोई और मैं रिकमेंड भी करना था तो इसको रिकमेंड करूँगा, मज़ा आ गया इसके साथ काम करके. ये वाला जो एक्सपीरियंस अगर तुम दे पाओ ना कि लाइक अपने क्लाइंट को, तो फिर यू बिल्ड ऑन अ क्लाइंट बेस, ठीक है, वो एक्सपैंड होता रहेगा धीरे धीरे करके. तो ये चीज़ थी. इसके कोई एक्शनेबल स्टेप्स हैं दैट न्यू फ्रीलांसर्स कैन मेक श्योर कि वो ऐसा इंश्योर करें to have a good client experience? So
having a good client experience, like I initially talked ना कि you should have clear communication with the client, ठीक है, वो तो important है, ठीक है, कि तुम्हें like let's say if a client says कि I have to build something like this, ठीक है, so अब ना डिज़ाइनर का सिर्फ यही यूएक्स डिज़ाइनर पर टॉक अबाउट, उनका सिर्फ यही रोल नहीं होता कि लाइक लेट्स से समवन हैज गिवन यू दिस टास्क, यू जस्ट कंप्लीट दैट टास्क. You have to think in your ways also कि how you can make that product better, you can make that design better, you can make that feature better, ठीक है, यूजर जर्नी कैसे बेटर कर सकते हो तुम, ठीक है, और you can maybe you can suggest some things to the client that you believe okay this can actually help. So उससे क्या होगा, if there is a to and fro ना, तो client को भी लगेगा okay they are working on this project wholeheartedly, ठीक है, so they will have their trust, ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इफ़ यू कैन गेन दैट ट्रस्ट ना. अब ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए क्या होगा, व्हाट आई विल डू इज कि लेट्स से दे आस्क मी टू गिव दीज पर्टिकुलर थिंग्स और दे आस्क मी टू डिज़ाइन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है, work for a particular project. So I will ask the requirements, we will have interviews and we will set okay these are the things that we need and I will start working on them. So trust building कैसे हो गया, first of all involve them in your project, ठीक है, have clear communications, ठीक है, involve them in your project, have clear communications with the client are the two things that I believe are the major like stepping stones. कि अगर client को खुश रखना है ना तो उन्हें तो पहले इन्वॉल्व रखो, ठीक है भाई. हाँ, देयर कैन बी सम केसेस वेयर द क्लाइंट वांट्स कि यू बिल्ड मी दिस एंड देन यू शो मी टू दिस, ठीक है, देयर कैन बी सम वे, बट इफ़ यू इन्वॉल्व क्लाइंट, जितना ज़्यादा क्लाइंट इन्वॉल्व होगा ना तो उतना ज़्यादा उसे पता होगा कि क्या चल रहा है एक्चुअली में, ठीक है, उसे पता होगा कि हाँ इंडिविजुअल स्टेप में ऐसा नहीं होगा कि लाइक ऐसा नहीं होगा कि ना तुमने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया उसका तुम दोबारा जा रहे हो क्लाइंट के पास और वो भी फिर टू एंड फ्रो वो भी परेशान होगा, राइट, कि वो भी ऐसा होगा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है यार, तो बिल्कुल ही कुछ अच्छा अलग सा बनाना चाहिए था. तो स्टार्टिंग में ही तुम उन्हें ना, और एक डिज़ाइन प्रोसेस भी अगर तुम अच्छा फॉलो करोगे ना, ठीक है, सो लेट्स से देयर इज़ अ मार्केट रिसर्च दैट यू हैव डन, ठीक है, तुम लेट्स से दे वांट टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मेरे को इस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है और कुछ पर्टिकुलर लाइक लो होएंगे, दे विल से कि इसके जैसा कुछ बनाना है मेरे को, ठीक है, दे विल गिव यू अ रेफरेंस कि इसका जैसा कुछ बना दो, ठीक है. सो यू विल एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि if they are asking something like from that particular website or that particular product or platform, what exactly they like in that, ठीक है, तो उसके अंदर जो चीज़ें होती है ना, तुम ऐसे नहीं कि UI कॉपी करके बना दोगे, ठीक है, या उनके जैसे उनका जो यूज़र फ्लो है वो कॉपी करके बना दोगे, ठीक है, यू हैव टू एक्चुअली नो कि क्लाइंट को क्या पसंद आ रहा है और वॉट एक्चुअली इट इज़ वर्किंग, वॉट आर द गुड पॉइंट दैट द प्लेटफॉर्म इज वर्किंग. सी इंस्पिरेशन तुम्हें लेनी पड़ेगी, देर इज़ नो कि नथिंग की लाइक तुम अपने आप ही सब कुछ एकदम से बना दोगे, तो इंस्पिरेशन लेना, मार्केट एनालिसिस करना बहुत हेल्प करता है उस चीज़ में कि लाइक इफ देर इज़ अ क्लाइंट ही कम्स टू यू कि बिल्ड समथिंग लाइक दिस, सो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, यू हैव टू बिल्ड ऑन दैट. स्टार्टिंग मत कर दो कि भाई ठीक है ये बढ़िया है, इसकी तरह कुछ बनाना, UI बना के दिखा देता हूँ या मतलब ऐसा कुछ बना के दिखाता हूँ. स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इफ़ आई टॉक अबाउट स्टार्टिंग क्लाइंट्स, ठीक है, और लेटर ऑन क्लाइंट्स का डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट थिंग्स दे रिक्वायर, सो वो होता है, बट धीरे धीरे करके ना यू हैव टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली द क्लाइंट वांट्स. वो एक पर्टिकुलर पॉइंट मैं दोबारा मैं मेंशन करूँगा, ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके आएगा, ठीक है. और क्लियर कम्युनिकेशन, द सेकेंड पॉइंट दैट आई मेंशन अगेन मेनी टाइम्स, एंड द थर्ड थिंग इज कि लाइक यू हैव टू बी गुड एट योर वर्क एज वेल, ठीक है. अब ये चीज़ तो मतलब एक तरह से सेड ही है कि लाइक इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एनीथिंग, कि ऐसा नहीं कि लाइक लेट से मैं एक डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ, मेरे को फिग्मा ढंग से यूज़ करना आता नहीं है और आई प्रॉमिस ऑन दीज थिंग्स, डोंट ओवर कमिट ऑल्सो, ठीक है. ओवर कमिट करना अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज इफ़ यू ओवर कमिट टू योर क्लाइंट, लेटर ऑन दे विल से कि लाइक लेट से यू विल से कि मैं 4 दिन में काम करके दिखा दूँगा आपको, ठीक है, तो 4 दिन बाद ना क्लाइंट को क्या लगता है, क्लाइंट ना तुम्हें 3 दिन बाद पिंग करना शुरू करेगी, भाई ये हो गया, तुम बोलोगे थोड़ा एक्सटेंड कर दो, तो दैट इज अ बैड क्लाइंट एक्सपीरियंस, ट्रस्ट ब्रेक होता है बेसिकली, बिल्कुल. तो यू हैव, तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम ओवर कमिट मत करो, तुम अंडर कमिट कर दो चाहे तुम अंडर कमिट करके अगर तुम ऑन बोर्ड कर पाओ ना क्लाइंट को, तो जब तुम्हें एक्चुअल वर्क दोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा. एक एग्जाम्पल दिया था, सो समवन केम बी लाइक रिसेंट की बात है, ठीक है, दे वांटेड मी टू लाइक रीडिज़ाइन 2 पेजेस, सिर्फ 2 पेज रीडिज़ाइन करने थे, ठीक है. आई कोटेड देम 50K, ठीक है, उन्होंने बोला था कि स्केल आउट भी कर लेना थोड़ा सा और चीज़ें मतलब करनी है, ठीक है. सो दे सेड कि मेरे को डिज़ाइन करके दे दो, ठीक है, एंड दैट वाज अ वेरी बैड डिज़ाइन, ठीक है, फॉर टॉक अबाउट.
So there were things like they were not aligned properly. If I talk about information architecture was not good, and there was not a clear hierarchy of information how to display it out. ठीक है. So I got into that. Okay, this is the product that coming. So मैंने एक base rough एक idea दिया कि these are the things that we can improve on. These are things that I think they will not work. And I gave them an like rough I can say wireframe और a basic design कि कुछ इस तरह का हम कुछ कर सकते हैं. ठीक है, इसको इम्प्रूव करने के लिए दिस इज़ हाउ इट विल इम्प्रूव, दीज आर द थिंग्स दैट विल एक्चुअली नॉट वर्किंग, इसके अंदर हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो हम ये सेट हुआ. ठीक है, सो इनिशियली ही सेट कि लाइक ठीक है, आई थिंक दैट विल वर्क, एंड आई सेट कि लाइक ज़्यादा चेंजेस हम नहीं कर सकते. ठीक है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, तो लेट्स डू दीज चेंजेस फर्स्ट एंड देन सी लाइक और हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं बाद में हम ऐसे कर सकते हैं. ठीक है. And later on like in those particular days I got the time to exactly redesign और exactly जो मेरे mind में था ना उस पर वर्क करने का. ठीक है, ठीक है. So I particularly said them कि हम पहले इतने पे काम कर सकते हैं, उसके बाद में इतने पे काम कर सकते हैं. ठीक है, अगर ये पसंद था तो. But I gave them the whole design and they were so impressed that they said कि like आगे से अगर मेरे को इस पर और बिल्ड ऑन करना होगा ना I will come to you. ठीक है. सो उससे क्या हुआ, आई एक्चुअली अंडर कमिटेड बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन एट दैट टाइम एंड आई कुडंट लूज दैट पर्टिकुलर क्लाइंट बिकॉज इट वॉज अ गुड क्लाइंट. सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, आई विल वर्क ऑन दिस, आई विल मेक समथिंग गुड वर्केबल कि एटलीस्ट कि बेकार नहीं होगा बिल्कुल भी, मतलब और अच्छा ही दिखेगा. ठीक है, इससे तो बहुत बेटर दिखेगा. ठीक है, बट अभी पूरा हम रीडिज़ाइन नहीं कर सकते बिकॉज दैट विल टेक सम टाइम. आई हैव टू एक्चुअली थिंक अपॉन, आई हैव टू एक्चुअली सेट अपॉन. ठीक है, टू वर्क ऑन दैट design to create that prototype. ठीक है, but I worked on that. ठीक है, and there are many improvements. No design is perfect. ठीक है, but I worked on the best design I could possibly meet. ठीक है, and मैंने research करी कि मतलब ठीक है, these are the things that I can do, these are the things I can make better, and then I presented them the design and they were so impressed कि like awesome, I will work on, you work on that. मेरे को future में expand करना होगा, you will be the person I will first come. डेटा के हिसाब से 70% ऑफ यू वाचिंग आर नॉट सब्सक्राइब्ड. तो इफ यू आर स्टिल वाचिंग, हिट दैट बटन, इट हेल्प्स यू ब्रिंग ऑन बिगर गेस्ट्स. तो अब बात करते हैं हाउ हैज़ फ्रीलांसिंग हेल्प्ड यू. अब 3 साल से फ्रीलांसिंग करो, 3-4 साल से, तो हाउ हैज इट? सी फ्रीलांसिंग हैज़ हेल्प मी इन अ लॉट ऑफ वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग में तो बहुत हेल्प करा. ठीक है, लाइक लेट से आई न्यू पर्टिकुलर स्किल राइट नाउ. ठीक है, then they ask me new things to work on and diverse industries में काम करने को मिला. That is the biggest thing that I think that have given me through freelancing. ठीक है, that I've achieved through freelancing कि when you work like let's say when you work on a project ना, तो there are always new like challenges that you have to work on. There are new things that you have to learn for that project. ठीक है, तो फ्रीलांसिंग में वो एक चीज़ बेनिफिट करती है कि धीरे धीरे करके ना you start to gain knowledge of different things, how different things work, how people think or how user of that particular product actually works. ठीक है, so वो चीज़ overall benefit करती है afterward कि let's say if I am giving an interview or if I am applying for a job, let's say a big company job, so if you have diverse experience, so that shows, वो तुम्हें एक इंटरव्यूअर को ना सामने से दिख जाएगा कि तुमने इतने पे काम कर रखा है, ये चीज़ों पे काम कर रखा है, यू हैव अ गुड नॉलेज, यू हैव अ गुड बेस, यू हैव वेरियस प्रोडक्ट्स दैट यू हैव वर्कड ऑन. तो वो चीज़ बेनिफिट करती है और तुम्हारा कम्युनिकेशन ऑब्वियसली कम्युनिकेशन बेटर होते हैं. सेकेंडली तुम्हारे को पता होता है कि ठीक है, दीज आर द मार्केट रेट्स, दीज आर, और तुम्हें एक सोर्स ऑफ इनकम तो होती है बेटर. ठीक है, धीरे धीरे करके सोर्स ऑफ इनकम भी बेटर होती रहती है. सो फ्रीलांसिंग हैज़ एक्चुअली, मैं बोलूँगा कि अगर कोई फुल टाइम डिज़ाइनर भी है ना, दे शुड टेक ऑन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स. क्योंकि while I was like working for my like full time, ठीक है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि लाइक ना कि I can take more on freelancing projects. ठीक है, because sometimes as a designer I feel कि I sometimes want to try new things. ठीक है, और वो freelancing से आ जाती है. ठीक है, मेरे को कभी न्यू चैलेंजेस मिलते हैं, सो आई गेट दैट ओके आई शुड वर्क ऑन दैट. और मे बी मेरा जो थिंकिंग विजन है ना वो बढ़ता है, मेरा विजन बढ़ता है कि मे बी आई कुड हैव डन दीज थिंग्स. ठीक है, लेट्स से देयर इज अ पर्टिकुलर फील्ड दैट आई एम वर्किंग ऑन, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आई एम वर्किंग ऑन. ठीक है, एंड दिस इज हाउ दे डू थिंग्स. ठीक है, तो वो जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आ सकती है वो मे बी कुछ और से इंस्पायर्ड हो. ठीक है, आई हैव वर्कड इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री, थिंग्स आर सिमिलर बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली. सो दिस कैन ऑल्सो हेल्प.
ठीक है. सो वो अपना आप ही होता है कि लाइक फ्रीलांसिंग यू गेट अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस डूइंग फ्रीलांसिंग. So I believe it is a very good thing. Whether you are in like full-time job, obviously if the company is not allowing you, then you cannot do that. But like most of the companies, I don't think have a rigid like base that you cannot take conflicting नहीं. But you can take on different projects if you can find different clients जो दूसरे industries में काम कर रहे हैं, दूसरे projects में काम कर रहे हैं. You can work on that. That will help you a lot. Bhai, any books or resources you can share for the audience listening? Okay, so personally speaking, I'm not a book reader. ठीक है. I do read case studies. I do like follow people who are good, working good. ठीक है. There are various books. ठीक है. I can like design everything. Design एक करके book है. I don't exactly know the name. ठीक है. Books बहुत सारी हैं. ठीक है. And they're actually very good books also. But I personally am not a good reader, I will say. So I usually like go into articles, case studies. I actually read कि उन्होंने कैसे प्रोडक्ट बनाया. ठीक है. Let's say if I am reading about Spotify, how they build on that, how they build on their product, मेरे को वो ज़्यादा इंट्रीग करता है. ठीक है. And I try to like let's say if there is a particularly conference होते हैं. ठीक है. तो like फिग्मा कोई कॉन्फ्रेंस हुआ तो मैं वो देख लेता हूँ कभी कभार. ठीक है. एंड मेजरली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई ट्राई टू वर्क ऑन थिंग्स. ठीक है. कि मेरे को फिजिकली मतलब जैसे वो होता है ना कि लाइक लेट्स से आई लाइक गॉट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर फील्ड और दिस पर्टिकुलर ट्रेंड, तो मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने का ट्राई करता हूँ कि अब इस पर ट्राई करते हैं. ठीक है. ऑब्वियसली नॉलेज के लिए यू हैव टू रीड अ लॉट. ठीक है. कि जो पर्टिकुलरली डिजाइन डिसीजंस होते हैं. ठीक है. वो तुम क्यों लेते हो. ठीक है. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. ठीक है. हाउ यू कैन मेक इट मोर एक्सेसिबल, how to like exactly know. जैसे there is different things कि मोबाइल कैसे डिज़ाइंस होते हैं. ठीक है. वेब डिज़ाइन कैसे होते हैं. द कंस्ट्रेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलरली. मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन होना चाहिए. सो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक दैट I gained that knowledge from reading articles, reading case studies, reading like online. ठीक है. Books, I will say there are a lot of books that will actually help you. ठीक है. बट वही सबका अपना अपना है. तो मेरे को आई बिलीव, बट आई विल लाइक लिंक इफ यू वांट सम लिंक्स. आई हैव few books that are very good. I can for research as well as for like particularly if you want to go know about design thinking. That is also like I have few books so you can read that. Finally bro, advice for college students जो कि first second year में है and they want to start with freelancing. आपका experience से advice for them. See, okay, so let's break it down. ठीक है. So first second year में ना they first of all like I will talk about engineering students. ठीक है. Then I can talk about general students. ठीक है. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास ना बहुत अच्छा हुआ है. ठीक है. वो क्या कर सकते हैं कि ना सबको स्टार्टिंग में ना फर्स्ट सेकंड ईयर में दे आर नॉट श्योर कि व्हाट दे वांट टू डू. If they want to go into web development, if they want to go into a particular field, data science or anything else, or if they want to choose any other field, whether it's content creation, whether it's designing, anything. ठीक है. I will say first start on that. ठीक है. Try different things. ठीक है. And let's say you are sure कि ठीक है मेरे को डिजाइनिंग में ट्राई करना है, तो उसके लिए what you can say first gain the skills. ठीक है. और गेनिंग स्किल्स ऐसे नहीं कि तुम एक साल तक स्किल ही लर्न करते रहो. यू स्टार्ट ऑन वर्किंग टुगेदर. ठीक है. लेट्स से जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट था, दैट वॉज कि व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट डिजाइनिंग. सो आई गॉट टू द पॉइंट आई केम ऑन फिग्मा, आई सेट माई अकाउंट एंड आई यूज टू screenshot websites, paste in them, and then I used to like make that whole design. ठीक है. मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है. ठीक है. कि जब तुम इस पॉइंट पे आ जाओ ना कि तुम कोई भी डिज़ाइन जो तुम देख रहे हो वो तुम बना सकते हो. यू नो हाउ टू मेक दैट. ठीक है. लाइक मेंटली यू शुड नो. ठीक है. इसके अंदर ये होगा, इसके अंदर ये होगा, इसके अंदर ये होगा. एक बार वो वाला जो आ जाए ना कि व्हेन यू कैन एग्जैक्टली लाइक मेक द थिंग्स दैट यू कैन सी, तो उसके बाद यू कैन थिंक ऑन योर ओन कि हाँ अब मैं कुछ अपना बना के देख सकता हूँ. ठीक है. तो वो वाला मेरे लिए सेकेंड ट्रांजिशन था. एंड व्हेन आई केम टू दैट ट्रांजिशन, उसके बाद मैंने क्लाइंट्स ढूंढना शुरू करे थे कि लाइक ठीक है अगर कोई मेरे से पूछेगा भी कि मेरे को ये बनाना है. ठीक है. लेट्स से इफ दे वांट मी टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस, अब मेरे को पता है कि ठीक है एटलीस्ट आई इफ आई टॉक अबाउट UI वाइज आई कैन एक्चुअली बिल्ड दैट सिमिलर प्रोडक्ट. ठीक है. आई नो व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन दैट. ठीक है. सो एंड साथ साथ में एक दो तरीके से होता है कि फर्स्ट इज यू स्टार्ट लर्निंग एज वेल. ठीक है. एंड ऐसा नहीं कि तुम पहला सब कुछ सीख लोगे फिर बनाओगे. ठीक है. हैकाथॉन से पार्टिसिपेट करो,
तुम्हारा प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट बनेगा। अगर तुम सिर्फ डिज़ाइन करना चाहते हो, तुम और लोग ले सकते हो जो एक्चुअली वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, एंड देन यू विल नो हाउ टू एक्चुअली कम्युनिकेट विद द डेवलपर्स एज वेल। ठीक है, तो वो एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है। Awesome. Thank you so much, Kshitij, for coming down to the studio and sharing your experience with my audience. I loved it, man. Thank you so much.